So now we will just brushing up what we did is. एक minute. Okay. So what we saw was regarding what is white discharge. Introduction लिया, फिर बाद में what is leukorrhea. Mainly it should be excessive amount of normal discharge and brownish yellow stain होना है. फिर माइक्रोस्कोपिकली वो क्या कंटेंट में आता है और उसके रीजंस व्हेन वी विल सी वाइट डिस्चार्ज इन फिजियोलॉजिकली एंड देन पैथोलॉजिकली. तो उसमें नॉन इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव, नियोप्लास्टिक और फॉरेन बॉडी. फिर इन्फ्लेमेटरी डिस्चार्जेस कहाँ कहाँ पे देखने में आते हैं और वो येलोइश कलर अगर प्यूरुलेंट रहा, हाँ, और पसल्स रहेंगे उसमें, वल्वोवाजाइटिस, सर्विसाइटिस, एंडोमेट्राइटिस और सेकेंडरी इन्फेक्शन ड्यू टू वुंड्स, एब्रेशंस एंड ऑल. Then what we did was in the last when where we stopped was regarding infective रहा तो trichomonas vaginitis, monilial vaginitis, bacterial vaginosis, cervicitis, atrophic in postmenopausal, foreign body, forgotten pessary, tampon, chemical में douches, latex condoms, deodorants, chemical irritants एंड न्यूप्लाज्म्स होगा, फाइब्रॉइड पॉलिप और जेनेटल मैलिग्नेंसी, और उसके नेचर हमने पढ़े थे. तो आज हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल इन्फेक्शन विच विल कॉज वाइट डिस्चार्ज वो हम देखेंगे, और उस जिसमें इचिंग ज्यादा रहेगा दैट विल बी आवर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग पार्ट. तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस इज वन ऑफ द कंडीशन विच इज प्रीवियसली रेफर्ड एज गार्डिनेला वजाइनाइटिस बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन विद द गार्डिनेला. तो इट इज एन अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल वजाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा. यहाँ पे बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो रहा है, द बैक्टीरिया इज कॉजिंग द वजाइनाइटिस, देयर बाय अल्टरिंग द वजाइनल फ्लोरा. दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, it's the one which is producing the lactobacilli and an overgrowth of predominantly anaerobic bacteria. तो वहां पे क्या हो जाएगा, the vaginal flora is been affected causing the changes in pH value, thereby invading of the infection. It is known that what triggers it is not known due to which the bacterial vaginosis is getting infected. Still, they have postulated that repeated alkalinization of the vagina, which occurs with frequent sexual intercourse or use of douches, plays a role. Because we see women feeling like repeatedly, if we keep washing it with the chemicals which are there, which we uh, get in the market saying it's an intimate wash, which are having chemicals in that, repeatedly if they keep washing it, or with the douche units which are available, the flora which is there, it is getting disturbed. तो हमको एजुकेट करना है कि नहीं करना है until the doctor prescribes if there is an infection and only यूज करना है, नहीं तो नहीं यूज करना है. एंड कॉमनली कुछ लोग आते हैं लाइक द पीपल हु स्टे इन क्या बोलते हैं, कोस्टल बेल्ट वेर देर इज कंटिन्यूअसली too much of sweating and all, then we have to tell them use pure cotton clothes, use cold water, do not go with the nylon clothing, and ask them to बहुत गर्म है तो ask them to go पंचवल्कल कषाय वॉश. उसके अलावा ज्यादा नहीं बताना है. वाइट डिस्चार्ज है तो त्रिफला कषाय. तो हमको उनको ऐसे एजुकेट करना है, या फिर नॉर्मल रेगुलर कोल्ड वाटर इज इनफ टू क्लीन. Women with bacterial vaginosis are at increased risk for PID, post-abortal PID, and abnormal cervical cytology. Pregnant women with bacterial vaginosis are at a risk for premature rupture of the membranes, preterm labor and delivery, chorioamnitis, and post-cesarean endometritis. जहां पर bacterial flora are the one which safeguard the infection. If that only is getting affected and the infection invades up, first वो PID में होगा if she is not pregnant. अगर वो PID I mean ट्रीट नहीं किया हमने ठीक से और बैक्टीरियल वजाइनोसिस वैसे ही रह गया, तो वो अगर कंसीव हो गई है तो पीआईडी से वो क्या हो जाएगा, अबॉर्ट भी हो सकता है. एक तो कंसेप्शन होना ही मुश्किल है, अगर कंसीव हो भी गई तो, या फिर अगर वो कंसीव होने के बाद वहां पे इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरियल वजाइनोसिस आफ्टर कंसेप्शन हो गया, तो भी इट विल कॉज पोस्ट अबॉर्शन, लाइक अबॉर्शन हो सकता है. या फिर अबॉर्शन होने के बाद अगर वहां पे ठीक से हमने इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं किया, या फिर once the baby is out or the concept product of the conception has come out, the flora has been affected and the chances of invading the infections are more, and it will cause ascending infection and lead to again postpartum PID. Then आएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, प्रीटर्म लेबर एंड डिलीवरी होगा,
कोरियोमनेटिस एंड पोस्ट सीजरियन एंडोमेट्राइटिस। पोस्ट सीजरियन एंडोमेट्राइटिस, अगर सीजरियन सेक्शन के बाद अगर हम उसको प्रॉपर केयर नहीं एडवाइस किया, लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है, हाँ सब क्लीन कर दिए हमने अभी, वॉट एवर वी हैव ऑपरेटेड टू, एंड वी हैव क्लीन द होल कैविटी इनसाइड, एंड you don't educate the patient that you have to at least clean with the warm water properly, and the whole flora inside in the vagina has also been affected, like after delivery there are changes in the hormones. तो अगर आप उनको educate नहीं करेंगे तो there are chances of ascending infection, or if the infection was there previously and antibiotic का proper से supply नहीं किया गया, sometimes what doctor does, if there is no infection, स्टैट डोज दे के बंद कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, एटलीस्ट 3 days का प्रॉपर कोर्स देना है। दिस इज द पिक्चर ऑफ बैक्टीरियल वजाइनोसिस। ओके, जो ओपीडी में आया था, कॉपर्टी डाला था, निकालने के लिए आया था, तो वहां पे इन्फेक्शन हो गया उसको। फिशी वजाइनल ऑर्डर डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फिशी vaginal odor which is particularly noticeable following coitus and vaginal discharge are present. Vaginal secretions are gray and thinly coat the vaginal walls. The pH secretion is higher than 4.5, usually 4.7 to 5.7. Microscopy of the vaginal secretion reveals an increased number of clue cells, and leukocytes are conspicuously absent. Addition of KOH. This is WIF test. This is one of the classical diagnostic test in bacterial vaginosis, where when we add a potassium hydroxide to vaginal secretion, it will give a fishy amine-like odor. This is a characteristic smell what we get in bacterial vaginosis. Culture of Gardnerella vaginalis is not recommended as a diagnostic tool because of its lack of specificity. तो मेन आएगा KOH टेस्ट, दैट इज द विफ टेस्ट। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल, एन एंटीबायोटिक विच इज एक्सीलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट एनारोब्स बट पुअर एक्टिविटी अगेंस्ट लैक्टोबैसिलाई, इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल वजाइनोसिस। तो मेट्रोनिडाजोल का कितना देना है? 500 mg orally twice for a day of 7 days. सी मेट्रोजिल और मेट्रोनिडाजोल जो है वो कॉमनली हम पोस्ट डिलीवरी भी 9 डोसेस देते ही है। 100 ml का TID डोज में 3 दिन देते हैं। और इवन इफ एनी पोस्ट अबॉर्शन हो गया, DNC हो गया, तो मेट्रोजिल डालना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, नहीं चलता है, क्यों डालने का, हम छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है। अगर आप डाल ही रहे तो प्रॉपर डोसेज में 9 डोसेज जाना है, वो 3 दिन मिनिमम प्रोफिलैक्टिक में। अगर ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में है तो वो रेकमेंड करते हैं 7 दिन का। ठीक है। An alternative regimen uses a single 2 gram oral dose of metronidazole, या फिर 2 gram सिंगल डोज देने का। फिर क्लिंडामाइसिन इज द इन द फॉलोइंग रेजिमेन आल्सो इज इफेक्टिव। क्लिंडामाइसिन क्रीम 2%, 1 applicator full of 5 gram intravagинally at bedtime for 7 days, और clindamycin 300 mg orally twice daily for 7 days. Alternatively, clindamycin ovules 100 mg intravagинally once at bedtime for 3 days. ये कैसे कॉम्बिनेशन में आता है? प्लेन क्लिंडामाइसिन नहीं आता है, उसके साथ क्लोट्रिमोजोल कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है। तो क्लोट्रिमोजोल एंड क्लिंडामाइसिन कॉम्बिनेशन के इंट्रावाजानल प्लेस करने के कैप्सूल्स आते हैं, रोज रात को एक प्लेस करने का 3 days। ठीक है। ये इवन प्रेगनेंसी में, टर्म प्रेगनेंसी में अगर वाइट डिस्चार्ज आया है, पेशेंट एडमिट हुआ है फॉर प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस, तो हम अगर वाइट डिस्चार्ज रहता है तो हम इसको पर वजानली प्लेस करते हैं। त्रिफला प्रक्षालन भी देते हैं। त्रिफला प्रक्षालन सिर्फ हम बाहर से देते हैं। इसमें पंचवल्कल अच्छा वर्क करता है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस में पंचवल्कल क्वाथ का प्रक्षालन करते हैं, लेकिन इंटरनल डाल के डिस्टर्ब नहीं करते हैं। व्हाट वी डू इज मॉर्निंग टाइम वी गिव पंचवल्कल प्रक्षालन, रात में क्या करते हैं, इंट्रावजाइनली प्लेस करते हैं क्लिंडामाइसिन क्लोट्रिमोजोल टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन टू असेंड अप एंड कॉज प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। फिर आता है ट्राइकोमोनियल वजाइनाइटिस। दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय ए फ्लैजेलेटेड पैरासाइट।
The parasite is an anaerobe that has the ability to generate hydrogen to combine with oxygen to create an anaerobic environment. Trichomoniasis और बैक्टीरियल वजनस इन एंड ऑन दोनों साथ में या फिर एक ही इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम देखते हैं तो दोनों इन्फेक्टिव होने के चांसेस रहते हैं. दैट इज व्हाट दे इवन टेल. ट्रैकोमोनल वजाइनाइटिस ऑफन accompanies बैक्टीरियल वजाइनोसिस. Trichomonal vaginitis is associated with the profuse, purulent, malodorous vaginal discharge. पेशेंट सिर्फ रूम में आएगा ओपीडी में तो ही स्मेल आना शुरू हो जाता है. एंड इट इज अकम्पनीड बाय वल्वार प्रूराइटिस. इट मे बी ग्रीनिश येलो इन कलर. पहले क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है तो अगर वो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है ये मेडिसिन ले लो देखेंगे. कॉमनली इट हैपन्स if we don't go for proper detail history or we don't go for examination तो क्या हो जाता है, this gets misled. और नेक्स्ट टाइम वो आता है ओपीडी भर स्मेल आता है तो तब हमको लगता है कि अभी देखना है. हाँ ऐसे होता है. तो उससे बेटर है कि एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना है. इन्फेक्शन अगर हस्बैंड को भी कुछ कंप्लेंट्स है, जब भी एक वाइट डिस्चार्ज का commonly infective white discharges comes to our OPD, we have to ask for husband and also prophylactically उनको भी ट्रीटमेंट दे देना है. और जब तक ट्रीटमेंट चालू है ask them not to come together. Okay. On examination of the vagina, a patchy vaginal erythema and colpatis macularis, that is strawberry cervix, may be observed. तो जब हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पे सर्विक्स कैसे दिखेगा, पिंकिश. तो दैट इज स्ट्रॉबेरी सर्विक्स दिखेगा. और वजाइनल एरिथमा, वजाइना फुल ऐसे रेड हो गया रहता है और पैच पैच दिखेगा. इफ अ ड्रॉप ऑफ सलाइन is added to a drop of discharge, motile organisms are seen in trichomoniasis infection. Metronidazole is a drug of choice for treatment of vaginal trichomoniasis. अभी क्या है, बैक्टीरियल वजाइनाइटिस को भी मेट्रोनिडाजोल ही है और ट्रैकोमोनल वजाइनाइटिस को भी मेट्रोनिडाजोल. तो एक ही ड्रग दोनों इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा. अगर दोनों इन्फेक्शन साथ में भी रहेंगे तो एक ही ड्रग से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है. Both a single dose of 2 gram orally and a multiple dose 500 mg twice daily for 7 days are the regimen which are effective and cure rates are about 95%. तो हमको ये ध्यान में रखना है. टू प्रिवेंट पीआईडी वी शुड इट इज बेटर ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन इट इज ऑलरेडी बीन प्रूवन. कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ ट्रायल हम क्या बोलते हैं, सिर्फ हम आयुर्वेदा में करेंगे. तो अगर इन्फेक्शन हाई है we would prefer you go for these at least single dose of 2 gram और फिर उसके बाद में douche और drug of choice of रस औषधीज can be given. But better than that would be like पहले इन्फेक्शन थोड़ा कम करना है फिर देना है. मॉडरेट लेवल रहेगा तो we can directly start with douche and medicines. The sexual partner should also be treated because it's a sexually transmitted disease. Then comes the vulvovaginal candidiasis, which is a very common condition. ओपीडी में हम ये हर दिन एक तो पेशेंट आता ही है जो अगर क्लीन नहीं रखते हैं या फिर वो डायबिटिक है और ज्यादा ओसीपी वगैरह लेते हैं, फिर एंटीबायोटिक रहता है तो पोस्ट एंटीबायोटिक एक हफ्ते में इन्फेक्शन होगा. तो ये कॉमनली हमको ओपीडी में आते हैं पेशेंट. The extensive areas of pruritus and inflammation often associated with minimal invasion of the lower genital tract epithelial cells suggest this infection. Commonly typhoid अगर हुआ है किसी वुमन को तो हमें कॉमन कंडीशन है पोस्ट टाइफाइड इन्फेक्शन. We get this kind of symptoms in our OPD. Factors that predispose are antibiotic use, pregnancy and diabetes. Pregnancy में कौन सा आएगा, उपप्लुत योनि व्यापत है ना, वहां पे बताया ना वल्वोवाजाइनल कैंडिडियासिस. तो दैट इज वेयर द factor to prevent the infection has been reduced because of the high estrogenous presence. कर्डी white discharge is a typical of candidiasis. इसमें अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हाइफे दिखेगा.
जहां पे वो व्हाइट डिस्चार्ज रहेगा वो बाकी का निकल जाएगा और हाइफेज जो है वो अडहर्ड रहेंगे, एंड दैट इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ vaginal candidiasis or vulvovaginal candidiasis. An oral antifungal agent fluconazole of single 150 mg dose weekly for 6 weeks, ये प्रूवन ड्रग है, इसके ऊपर ट्रमेंडस स्टडीज हुए हैं। तो अगर हमारा ट्रीटमेंट नहीं वर्क हो रहा है, ज्यादा डिले नहीं करने का, ये स्टार्ट करने का। दिस इज अ पिक्चर ऑफ vulvovaginal candidiasis where you can see the hyphae adhered on the vaginal wall. Where chronic cervicitis. In chronic cervicitis, leukorrhea is the chief symptom. The white discharge may be frankly purulent and variable in color or may be present simply as thick, tenacious, turbid, and mucus. Associated cervical erosion or ectopy may present as a velvety to granular redness or as patchy erythema. तो क्या रहेगा, सर्विसाइटिस से नहीं, क्रोनिक अगर सर्विसाइटिस रहेगा तो कॉमनली क्या रहता है, एरोजन टाइप ऑफ लीजन्स आर सीन और नेबोथियन cyst will form there. Okay. Somebody has messaged. What their message? Tablet fluconazole given in pregnancy also. प्रेगनेंसी में वल्वा वजाइनल कैंडिडियासिस में क्लिंडामाइसिन का हम लोकल इंसर्शन करते हैं रादर देन गिविंग ओरली। हम वहां पे 3 days क्लोट्रिमazole विद क्लिंडामाइसिन का कॉम्बिनेशन जो है हम रखते हैं। फ्लुकोनाजोल का 400 mg का सिंगल डोज देके छोड़ देते हैं फ्लुकोनाजोल का। ओके। एसोसिएटेड सर्वाइकल एरोजन, हाँ कहाँ थे हम, क्रोनिक सर्विसाइटिस में क्या रहता है, कॉमनली सर्वाइकल एरोजन रहता है। तो अभी ये सर्वाइकल एरोजन कब होगा, अगर दैट पेशेंट इज टेकिंग ओसीपी। कॉमनली हम ओपीडी में देखते हैं, अभी एक 35 to 40 years वुमन कमिंग टू आवर ओपीडी एंड शी इज टेलिंग आई एम हैविंग वाइट डिस्चार्ज। कब से है, 6 months से है। इमीडिएट उसको लेके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। तो कॉमनली हम वहां पे देखेंगे वाइट डिस्चार्ज है। सी रिमेम्बर वन मोर थिंग, एज अभी कैंसर का क्या है ना, एचपीवी का वैक्सीन हर कोई लिया नहीं है, और वो कितना जेन्यून है उसके ऊपर अभी स्टडीज कर ही रहे हैं। बोलते हैं कि इट इज ऑलरेडी प्रूवन एंड ऑल, बट स्टिल अभी इफ यू गो टू अ जनरेशन हु इज 40 years एंड ऑल, ठीक है, 30-40 years, उस जनरेशन को अगर हम जाएंगे तो वो एचपीवी का वैक्सीन नहीं लिया रहेगा, है ना। तो क्या होगा, पॉइंट्स टू रिमेम्बर इन ओपीडी, what will happen when the patient will come to our OPD, she'll tell I'm having white discharge, there is itching, this that everything she'll tell। make a routine, white discharge आया है, anything more than 1 month, अगर white discharge more than 1 month, immediately एक vaginal swab लेके ही send करना है patient को। send it for investigations, HB swab, vaginal swab कल्चर के लिए भेज ही देने का, वेट ही नहीं करना है। देन अगर कुछ रहा चेंजेस तो वजाइनल स्मीयर या फिर डायरेक्टली कॉल्पोस्कोपी के लिए रेकमेंड कर दीजिए। लेट देम गेट इट डन ऑन द सेफर साइड, वी विल प्रिवेंट वन कैंसर टू हैपन। और what will happen with cervical cancer, usually patient come with third stage, so it is very difficult, the lifespan is very less। Recently we saw one patient of metastatic changes in spine, history is nothing, she delivered 2 kids, we later analyzed that there might be a cervical erosion which might have had an episode, CIN का स्टेज रहेगा 2 या 3, जो वो नहीं दिखाया था, and she landed with metaplasia of second metastasis changes in her spine, and she died within 6 months, only 6 months of survival। it is a very poor thing na, which could not be diagnosed, it's in a big institute, it is not like in small institute it has happened। तो क्या होता है ना, हम लोगों को थोड़ा विजिलेंट रहना है। वी शुड ऑल्सो बी अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न्स दैट कि पेशेंट को एक तो टाइम नहीं है, एवरीबडी इज सो ऑक्यूपाइड इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज, वी हैव टू एटलीस्ट वेन एवर दे कम और वेन एवर वी मीट एटलीस्ट एजुकेट, एक 10% तो एजुकेट करिए। वो सीरियल के बारे में, पिक्चर के बारे में, वो सभी बात करने के लिए टाइम रहता है, थोड़ा एजुकेट
भी करना है. टुडेज जनरेशन रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉमन सेंस विच इज वेरी मच लैकिंग इन टुडेज एरा. बड़ा बड़ा गूगल डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, कॉमन सेंस कम है. सो यू ट्राई टू एजुकेट ऑल द एडोलसेंट गर्ल्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. रिप्रोडक्टिव एज गर्ल्स, वाइट डिस्चार्ज रहेगा, क्या करना है, कहाँ पे जाना है, इमीडिएट क्या दिखाना है, यूटीआई है, घर में लेके नहीं बैठना है. दिस ऑल थिंग्स, कभी भी आप घर में कोई वुमेन गेट टुगेदर है, एक स्मॉल टॉक एज अ एजुकेटिव, डू इट. आप लोगों को चार लोग कोसेंगे, बट वन लाइफ अगर आप 10 लोग में सेव करेंगे ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल का कंडीशंस इज वेरी बैड, कैंसर्स आर इंक्रीजिंग. नेबोथियन सिस्ट जो यहाँ पे अभी आएगा, सी व्हाट इट इज टेलिंग, रीड दिस. Associated cervical erosion or ectopy may present as a velvety granular redness or a patchy erythema due to scattered squamous metaplasia, that is epithelialization or epidermization. Nabothian cysts in the area of the so-called transformation zone often occur, and these Nabothian cysts, if you don't treat at the earliest, or if you don't change the cervical erosion when it is diagnosed back to the normalcy, एक तो टाइम लेगा ट्रीटमेंट, ट्रीट होने के लिए एरोजन टाइम लेगा. इफ यू डोंट intervene, if you don't start the treatment, these people will land up in malignancy. This is proven. These are the conditions which will land up in malignancy. So you have to educate the patients. White discharge simple नहीं है. क्या है? हाँ white discharge है, हाँ चलो लिख दो. No. Always remember, any history more than 20 days actually. 20 days में अगर कम नहीं हुआ तो सेंड फॉर अ वजाइनल स्वैब या फिर स्मीयर. पैप स्मीयर तो बेस्ट है, एक पैप स्मीयर करके भेज दो. द स्किलर्स टेस्ट, हाँ कुछ लोग बोलेंगे हमारे ओपीडी में पैप स्मीयर नहीं है. हाँ, फ्यू पीपल ऑलवेज आस्क अस, दे repeatedly question us, in our OPD we don't have pap smear madam, what we should do? Nothing, send to big diagnostic centers, there are doctors who will do vaginal pap smear. If you cannot do, they will do. At least you send. Then Skiller's test may show poorly staining or non staining areas. Iodine solution डालेंगे तो stain होता है. Then next is, एक minute, why is this stuck? Ah, okay. There is often some tenderness and thickening in the region of uterosacral ligaments. अगर परवजाइनल हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा? टेंडरनेस रहेगा. यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, व्हेन वी पुट आवर फिंगर्स ऑन द साइड्स, फोनाइसिस में हम डाल के ऊपर से अगर हम प्रेशर देंगे तो वहां पे पेन रहेगा. और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस में बी पेनफुल बिकॉज ऑफ द सर्विसाइटिस. अगर हम फिंगर से उसको थोड़ा मूव करेंगे तो उसको पेन आएगा. अगर वो कन्वर्ट हो गया है कैंसर में तो थोड़ा भी टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लीड हो जाएगा, है ना. प्रोफ्यूज ब्लीडिंग रहेगा तो इमीडिएटली पेशेंट को भेजना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू डू अ पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन. इफ इट इज अ वेरी मच रेड इन कलर, बहुत ही सर्विसाइटिस है, डोंट डू अ पीवी, डायरेक्टली सेंड इट फॉर कॉल्पोस्कोपी या फिर पैप्समियर लेना है. ओके, नहीं तो वो 99% मैलिग्नेंट ही रहेगा. Lower abdominal pain, lumbosacral pain. See, lumbosacral backache, what I was telling, recently we saw a case which passed away. तो उसमें ये कंप्लेंट था, lumbosacral backache था, लेकिन डायग्नोस नहीं हुआ बिकॉज पेशेंट थॉट उसको इसको कुछ संबंध ही नहीं है. एंड यू नो हु पास्ट वाज अ डॉक्टर. ओके, तो this is the symptom. Then dysmenorrhea, dyspareunia may occur occasionally related to an associated parametritis. Parametritis is the adnexal infection. Colposcopy and a pap smear is needed to rule out progressive lesions. है ना? Even they tell we have to go for these two investigation. Patient is having enough paisa, immediately send for colposcopy. This is cervicitis, chronic cervicitis. ओके, इसमें वाइट डिस्चार्ज कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ क्रोनिक सर्विसाइटिस दिख रहा है आपको. अगर इसका पैप्समियर भेजना ही है, क्रोनिक रहेगा तो भेजना ही है. अक्यूट में थोड़ा बहुत डूश देके ट्राई करते हैं, लेकिन चांस नहीं लेना है. टू रूल बेटर टू सेव द वुमन.
सो सेंड फॉर अ वजाइनल पैप स्मीयर। और एक एजुकेशन आपको देना है। एनी वुमन पोस्ट 35, 35 नाउ 30 को आया है, लेकिन 35 एज अ नॉर्म, post 35 every year a woman has to go for a vaginal pap smear. It is a must. Educate the woman. There is no wrong in getting a test done. Hey, how to go, ऐसे कैसे जाएंगे, all these नखरास are not accepted. You educate them for a better living. Okay, उनको educate करिए आप। एटलीस्ट ईयरली वंस वजाइनल पैप स्मीयर का टेस्ट कराना है। यू इवन हैव टू, इफ आपके घर में कोई सीनियर्स है उनको आप बताइए, इट्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। देन सर्वाइकल पॉलिप्स रहेगा तो भी वाइट डिस्चार्ज रहेगा। आर स्मॉल पेडुंकुलेटेड ऑफन sessile neoplasms of the cervix, most originate from the endocervix. Okay, they are composed of vascular connective tissue stroma and covered by columnar or squamous epithelium. Polyps arise as the result of focal hyperplasia of the endocervix. तो endocervix कहाँ रहेगा? अंदर there is a two junction outside, वहां पे एक squamous और columnar का एक junction आएगा, उसके अंदर वहां जहाँ पे columnar cells है वहां से पॉलिप होने का चांसेस रहता है। It is not known whether this is due to chronic inflammation and abnormal local responsiveness to hormone stimulation or a localized vascular congestion of the cervical blood vessels. They are still not known. Why do they occur? है ना? सिंपल रिमूवल ऑफ सर्वाइकल पॉलिप इज यूजुअली क्यूरेटिव, है ना? वॉर्म फॉर्स लेने का, घुमा घुमा के निकाल के फेंक देने का, फेंकने का नहीं, टेस्ट को भेजने का। हाँ, यू शुड सेंड इट फॉर एचपी टेस्ट रिपोर्ट। एचपी रिपोर्ट चाहिए हम लोगों को। Any growth which is exposed to the lumen of the genital tract can cause a continuous discharge, which is at first white, cream, and non-offensive. Soon the growth becomes ulcerated and infected as the necrotic tissue is exposed to the large number of organisms present in the vagina. तो अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वो नेक्रोज होता शुरू हो जाएगा और इन्फेक्टिव हो सकता है। तो टीवीएस करेंगे तो पता चलेगा कि इवन ट्रांस एब्डोमिनल भी पता चलता है, लेकिन क्लियर कट टीवीएस में पता चलता है। Excuse me. The discharge then become purulent, offensive, and bloodstained. Often the odor is so marked that it can be appreciated as soon as the woman enters the room. Such symptoms are characteristic of a malignant neoplasm, but they may also be caused by benign lesions such as cervical polyp. दोनों कंडीशन में स्मेल आएगा, मैलिग्नेंट रहेगा तो भी आएगा, सर्वाइकल पॉलिप नेक्रोज हो गया है तो भी आएगा। So differential diagnosis of the vaginal discharge would be like trichomoniasis रहेगा, greenish yellow color, thin frothy, pH more than 5, negative for whiff test. Candidiasis curdy white, thick less than 4.5 is the pH and negative for whiff test. Whiff test क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के स्मेल देखने का। Bacterial vaginosis, pH more than 5, positive fishy amine. Rest everything is having negative whiff test except bacterial vaginosis. So it's a classical characteristic test. Chlamydial में मेरे को प्रूरुलेंट येलो व्हाइट, थिक कंसिस्टेंसी लेस देन 4.5 pH, नॉर्मल में थिन व्हाइट 4.5 लेस होगा और नेगेटिव रहेगा। ट्रैकोमोनासिस और कैंडिडियासिस में इचिंग रहेगा, बाकी कहाँ पे भी इचिंग नहीं है। और डायग्नोसिस विद सलाइन टेस्ट, सलाइन वेट माउंट टेस्ट में ट्रैकोमोनास मोटल ट्रैकोमा दिखेगा, हाइफे दिखेगा। और बैक्टीरियल वजाइनोसिस में क्लू सेल्स है। क्लैमिडिया में क्लैमिडिया डीएनआर बाय पीसीआर टेस्ट करना है, पॉलीचेन रिएक्शन करना है। नॉर्मल वे डिस्चार्ज में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको। और फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉर दोनों का मेट्रोनिडाजोल है फॉर बैक्टीरियल एंड ट्रैकोमोनासिस, कैंडिडियासिस में फ्लुकोनाजोल, क्लैमिडिया में एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली सिंगल डोज। तो इन्वेस्टिगेशंस ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज में एज ऑफ द पेशेंट, कौन से एज में आया है, एडोलसेंट है, रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट पेरीमेनोपॉजल है, पोस्ट मेनोपॉजल है, वी हैव टू बी vigilant with the age. Amount of discharge as judged by the need to wear a sanitary pad or by staining of underclothing. जितना कितना अमाउंट ऑफ वेट डिस्चार्ज हो रहा है, आते हैं पेशेंट फुल एक एक कटोरा जितना निकलता है अगर आप डाल के क्लीन करेंगे तो। Onset. Leukorrhea has a gradual onset. A sudden onset of discharge nearly always means infection or a chemical or physical insult. अगर कुछ physical insult हुआ है vaginal flora को, कोई foreign body यूज किया है, तो वो commonly देखने में आता है।
There may be a history of exposure to the risk of venereal infection or in case of candidiasis, a history of recent treatment with antibiotics. अगर antibiotic लिया है, like I told in typhoid. Relationship to menstruation, ovulation and pregnancy. Okay, अगर menstruation के टाइम में mild white discharge है तो हम क्या बोलेंगे, मेंसेस आ रहा है, फिजियोलॉजिकली प्रोजेस्टेरॉन है तो थोड़ा white discharge रहेगा प्री मेंसेस, तो इट इज फिजियोलॉजिकल. अगर ओव्यूलेशन के टाइम में है तो कैसा रहेगा वो, इलास्टिकी म्यूकस बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन. प्रेगनेंसी में रहेगा चेंजेस इन द हार्मोन्स, इफ नॉट मेंटेन्ड then it will turn up into infective. Okay, and it will lead into candidal infection. The use of toilet preparations, these include douching and the application of antiseptics or deodorants. Deodorants तो इतना बुरा है. हाँ, you should teach the woman not to use colognes और क्या बोलते हो परफ्यूम्स. फिर कुछ आता है ऐसे कुछ मिस्ट, कुछ आता है मार्क क्या बोलते हैं, बॉडी मिस्ट आता है ना, तो वो वजाइनल क्या है वो जेनाइटल मिस्ट करके कुछ आता है मार्केट में, पेशेंट्स बोलते हैं ये सब सेफ है ना मैडम, क्या है उसमें, इसमें कैस्टर ऑयल का कुछ डाला है ना मैडम, ये चलता है ना, दिल ब्रिंग दैट, दिल कम टू द ओपीडी, दे आस्क ये चलता है ना, इसमें कुछ अल्कोहल नहीं है, ये हम यूज कर सकते हैं. वी टेल यू डोंट यूज एनीथिंग, यू डोंट अप्लाई एनीथिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. तो वी हैव टू एजुकेट देम. Then the color of discharge. Care is necessary to distinguish between a brown or blood-stained discharge and the normal creamy discharge which dries leaving brown or yellow staining. अगर ब्राउन ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो कैंसर रह सकता है या फिर नेक्रोटिक पॉलिप रहेगा, वी हैव टू चेक फॉर दैट. एंड रेस्ट इज लाइक नॉर्मल क्रीमी डिस्चार्ज जो है तो वो लिकोरिया रहेगा. स्टिल अगर रिप्रोडक्टिव एज में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ज्यादा तो ऑलवेज गो फॉर एन इन्वेस्टिगेशन. एंड टीसीडीसी ESR तो कंपलसरी करना है, CRP भी करना है. Offensiveness. If the discharge is offensive, it is usually caused by a foreign body infection or neoplasm. Pruritus ज्यादा है, itching है. Any discharge can cause excoriation of the vulva, but none except those caused by the infection of Trichomonas vaginalis or Candida albicans. इस दोनों में ज्यादा रहेगा. तो एग्जामिनेशन क्या करेंगे, आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ द वल्वा, द ओपनिंग्स ऑफ द वजाइना एंड द यूरेथ्रा, अ स्पेकुलम इज इंसर्टेड टू डिटरमाइन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज and to study the vaginal wall and cervix. Specimens are then obtained from the vagina, taking care not to contaminate with them with lubricant. Lubricant नहीं डालना है, vaginal pap smear लेना है, vaginal swab देना है तो उसमें lubricant नहीं लगाना है, इसे परस्पेकुलम करके टेस्ट को लेने का है. These are examined primarily for pus cells. If pus is not found, then irrespective of any organism present, it can be concluded that discharge is a true leukorrhea, not an infection. सो एग्जामिनेशन में पस सेल अगर नहीं रहेगा तो वो ल्यूकोरिया है एंड नॉट ड्यू टू इन्फेक्शन. लेकिन दिस ल्यूकोरिया कैन ऑल्सो बी CIN, सर्वाइकल इंट्रापिथिलियल नियोप्लाज्म या नियोप्लेशिया, तो उसको देखना है, चेक करना है. और अगर हेल्दी सर्विक्स नहीं है तो इमीडिएट इरेस्पेक्टिव ऑफ एज स्मीयर को लेना है, टेस्ट को भेजने का है या फिर डायरेक्ट कॉल्पोस्कोपी करने का है. If pus cells detected, further investigations are to be carried out to identify the organism from the discharge, provided neoplasm and foreign body are excluded. Then examination include vaginal swab and pap smear. In that you will see for Clusels, gram stain and culture के लिए भेजने का है. Microscopic wet mount KOH is checked for the cells. Treatment is given according to the nature of discharge. म्यूकस रहेगा, गोनोरिया है, क्लैमिडियल है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना है. If the partner has a lesion, the couple has to be given treatment together. Pill users has to stop the intake of the pills for temporary. Local hygiene has to be maintained meticulously. And cervical factors require surgical treatment like electrocautery or cryosurgery in cervical erosion. आयुर्वेदा में कौन सा आएगा, श्लेष्मिकी, अत्यानंदा, कर्णिनी, अचरणा और विप्लुता, अतिचरणा और उपप्लुता. फिर श्लेष्मिक में कफो अभिषंधि अभिवृद्ध योनिम चेत दूषित स्त्रियाः स कुर्यात् पिच्छिलम शीतम कंडोग्रस्त अल्पवेदना पांडुवर्ण तथा पांडु पिच्छिला आर्तवाहिनम. तो जो स्त्री बहुत सारा अभिषंधि आहार विहार खाएगी, हाँ आते रोज उठ के दही खाने वाले, हम लोगों को दही शक्कर बहुत अच्छा लगता है, साइड में अचार भी खाते हैं हम, हाँ दिस इज व्हाट दे कम. यू शुड एजुकेट, डोंट डू दैट, इट इज वेरी बैड. एंड दे लैंड अप विद कफा योनि वापत, तो वहां पे कंडोग्रस्त
कैसे रहेगा वो? पिच्छिल शीत अल्प वेदना के साथ पांडुवर्ण स्राव होगा, और उसी के साथ all the श्लेष्मिका लक्षणास आर सीन. सो इट कैन बी कोरिलेटेड विथ ट्रैकोमोनास वजाइनाइटिस. चिकित्सा में रुक्ष उष्ण कर्म कुर्यात् और कटुप्राय समूत्र वस्त्यो हिताहा. तो क्या करना है? कटुप्राय समूत्र, गोमूत्र साधिता बस्ती देना है. कल्क में शामादि कल्क को यूज करना है. पिप्पली माश मरीच शताव कुष्ठ सैंधव का वर्ती बना के अंदर रखना है. पत्य तैल सिधु यावन्न अभ्यारिष्ट देना है. अत्यानंदा में न संतोष ग्राम्य धर्म गच्छति. जितना भी उसको इंटरकोर्स करेंगे खुश नहीं रहेंगी वो, बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस देयर. एंड श्लेष्मिक